اسے سب ہے قید نقیخہ کا بیٹا وہ احمد رضا ہے بریلی میں لیٹا اسی اعلی حضرت کا ہے واسطہ مدینہ بلا لیجئے. ہاں آ گیا کال اس کا. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں ہاں بولیے. جمشید بھائی بات کیجیے. کون صاحب؟ السلام علیکم جناب. کون صاحب؟ السلام علیکم. کون صاحب بول رہے ہیں بھائی؟ السلام علیکم. پہلے ایمان کی تعریف پھر سلام کا جواب. جناب سلام سے پہلے آپ کوئی آپ کے گھر آئے گا تو اس سے سلام کریں گے یا پہلے اس کا تعارف کریں گے؟ پہلے اس کا تعارف پوچھیں گے. جی ایسا. ارے جی جناب بہت خوشی ہوئی تو آپ سے بات کر کے. کیا آپ پہلے بیٹھ کے کال سے واقف نہیں ہے کیا؟ جی ہم تو بالکل واقف ہے اور اسی سوال سے ہم نے بھائی سے کیا تھا کہ آپ نے جو لکھا ہے امام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا دوبارہ بولنا. بھائی نے پوسٹ ڈالی ہے گروپ میں. ہاں. جس میں روایت لی انہوں نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ہاں. لیکن اس میں نام کے آگے انہوں نے لکھا امام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے پیچھے کتنے سال نماز پڑھی تھی؟ جی کتنے سال نماز پڑھی تھی؟ اس سے کیا مراد لیا جائے؟ ارے تو امام بنے نا وہ. کہہ سکتے ہیں. بالکل کہہ سکتے ہیں. امام کس کو کہتے ہیں؟ آپ اپنے مسجد کے نماز پڑھانے والے کو امام کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو پھر تو جناب بعد میں کہنا. تم حضرت ابوبکر صدیق کے بعد میں جانا. پہلے بتاؤ مسجد کے امام کو کیا بولتے ہیں؟ نماز جو پڑھاتا اس کو کیا بولتے ہو آپ؟ ہاں امام کہتے ہیں. کیوں بولتے ہو امام ان کو بولنا امام؟ ان کو امام بولنا تمہارے لیے ضروری ہے اور اس کو امام بولنا تمہارے لیے جائز. اور حضرت ابوبکر صدیق کو امام بولنا تمہارے لیے تو دل کے اندر تمہارے مروڑ پیدا ہو جاتی ہے. جی کیوں نہ ہو. کیوں کیسے ہوگی؟ کون ہے؟ حضرت علی کے امام ہے وہ. حضرت علی امام حسن امام حسین کی امام کے. آپ مولا علی بولیے. آپ اگر حضرت بولا تو کیا ہو گیا؟ مولا بولیے نا. تو حضرت بول دیا تو کیا ہو گیا؟ مولا علی بولنے میں کیا دقت ہے؟ امام زین العابدین نے حضرت علی کئی بار مخاطب کیا ہے. جی تو آپ کے امام زین العابدین سے یہ کریں گے؟ سنت ہے نا ان کا بولنا. ارے جو کام تابعی نے کیا وہ کام اگر ہم کریں گے تو سنت ہوگا نا. جی اگر آپ فالو ہی کرنا چاہتے ہیں پہلے میرے سوال کا جواب دو. پہلے سوال کا میرے جواب دو. حضرت علی نے کتنے سال حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی؟ سب سے پہلی بات آپ مولا علی حضرت ابوبکر نے حضرت ابوبکر کے پیچھے حضرت امام علی مقام نے کتنے سال نماز پڑھی؟ ہاں جی کافی ٹائم. جب تک انہوں نے کتنے سال آپ کی خلافت دور خلافت رہی تب تک نماز. تو ان کے پیچھے نماز ان کے پیچھے جو نماز پڑھی امام لگا دیں. بالکل لگائیں گے امام. کیا بات. امام کہتے کس کو ہے؟ امام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ارے امام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ارے امام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان کے پیچھے نماز پڑھی. کس کے پیچھے؟ آپ میری بات کا جواب دیں گے. کس کے پیچھے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے ان کے ماننے والوں کے پیچھے نماز پڑھی. آپ نے ان کے ماننے والوں کے پیچھے نماز پڑھی. ہاں جیسے آپ نے حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھی حضور کے ماننے والوں کے پیچھے نماز پڑھی نا آپ نے حضور کے. ہاں تو ایسے ہم نے نماز پڑھی حضور کے ماننے والوں کے پیچھے اور حضرت ابوبکر صدیق کے ماننے والوں کے پیچھے, حضرت علی کے ماننے والوں کے پیچھے, امام حسن کے ماننے والوں کے پیچھے. اب بتائیے امام عالی مقام نے جب حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے 2.5 سال نماز پڑھی تو کیا امام سمجھ کے پڑھی یا غیر امام سمجھ کے پڑھی؟
तो उससे क्या इमाम का मुराद लिया जाएगा? तुम हो कौन तो फतवा मैं आपको लगाने देख रहा वाले कि इमाम का नाम नहीं लिया जाएगा? तुम हो कौन? शरीयत में क्या मिसाल है तुम्हारी? मुफ्ती हो, आलिम हो, कौन हो तुम? हूं। जनाब अगर मैं अपना तारुफ आप आपको कौन हो? करवा दूंगा तारुफ ना, कराओ, तो तारुफ कराओ। आप- हाँ, तारुफ कराओ, कौन हो आप? मैं अपना तारुफ अगर करा दूंगा तो आप तो माफी कर दो ना मांगेंगे। भाई, माफी क्यों मांगूंगा? तुम्हारे इल्मे गैब है कि माफी मांगूंगा मैं? मैं आप अपना बहस में तारुफ ना जाए कराओ, कि मैं कौन हूँ। तारुफ कराओ अपना। आपने कौन हो? खलीफा हो? मैंने जो क्या सहाबियों में से हो? ताबई में से हो? कौन हो तुम? मैंने जो हाँ, आपसे मैं सवाल बकरी की पूछा तरह है, मैं मत करो, अपना तारुफ कराओ। मेरे दिल में जो सवाल था, तुम्हारे दिल में जो सवाल है, सुनो, तुम्हारे दिल में जो सवाल था उसका जवाब तुमने खुद दे दिया कि जब तुम मस्जिद के इमाम के पीछे जब नमाज पढ़ते हो उसको इमाम कहना तुम्हारे लिए जायज है, तो हजरत अबू बकर को इमाम जी। कहना ये गलत कैसे हो गया? कहाँ से तुमने पढ़ लिया ये? अपने फिर मस्जिद के आप नमाज अगर- इमाम को तुम इमाम क्यों कहते हो? चलो इसका जवाब दे दो मुझे। ठीक है, भाई चलो मैंने मान लिया, हम उन्हें ईमान कह सकते हैं। क्यों? ठीक है, हम कैसे उन्हें कैसे ईमान- किसको कह सकते हैं? मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हम इमाम कह सकते हैं। ठीक, अरे मेरी बात तो सुनो, वो अगर हर आप- एक शख्स, सुनो, जी। वो हर एक सहाबी इमाम है। इमाम का माना होता है नाइब रसूल। समझ में आई बात? जी, हर एक सहाबी, क्या आज हर एक के- सहाबी इमाम है, हर एक ताबई इमाम है, हर एक तबे ताबई इमाम है। इमाम अबू हनीफा, इमाम जी। शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम जैनुल आबिदीन, इमाम जाफर, इमाम बाकर, इमाम सिद्दीक अकबर, इमाम उस्मान गनी, ये सब इमाम है। इमाम का मतलब होता है रहबर, नाइब रसूल। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से तो ये जाहिलाना सवाल तुम्हारे दिल में कैसे पैदा हो जाते हैं? हजूर अजीम है। अगर आप से एक बात पूछूं अच्छा, तो आप मुझसे एक बात जवाब बताइए, दीजिएगा। मुझे एक बात बताइए, हमारे नबी ने हमें ईमान की तारीफ बताई है कि नहीं? जी बताइए। क्या है ईमान की तारीफ? ईमान कहते किसको है? ईमान मुकम्मल कब होता है? जनाब बताओ जरा। आप ईमान की मुझसे भागना नहीं, शरीयत के सवाल- भागना नहीं, भागना नहीं। नहीं, ईमान मैं की भाग तो नहीं ईमान रहा हूं। ईमान मैं भाग नहीं ईमान ईमान किसको कहते हैं? और मैं- ईमान की तारीफ क्या? अगर तुमने ये बता दिया तो मैं समझ लूंगा हाँ भाई तुम बहुत पहुंची हुई चीज हो, आलिम दीन हो। चलो जनाब, बताओ। आप शरीयत में ना जाइए, मुझे सिर्फ इतनी सी चीज अरे ये बताइए, मैं शरीयत आपकी नहीं है, बात ये से अकीदा बिल्कुल है। सहमत हूं। अकीदा है, ये शरीयत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं अकीदा और आपकी शरीयत बात से एक होती सहमत है। हूं कि हम अकीदा और शरीयत एक होती जी, है। जी नहीं होती है। नहीं होती तो तुमने कैसे बोला शरीयत में ना जाइए? ईमान की तारीफ हुजूर ने क्या बताई, और क्या कुरान ने बताई, क्या हदीस में बताई, अल्लाह के रसूल ने, और ये कब बताया ईमान मुकम्मल कब होता है? ये दो चीज मुझे जब तक नहीं बताओगे तो कुरान ने जाहिलों से बहस करने के लिए मना किया है, इन्ना जाहिलूना कि जाहिलों के साथ बहस ना किया करो। जी, 1 मिनट कॉल बैक कीजिए, 1 सेकंड। बताओ जल्दी। एक आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को ये किसी और होल्ड को पर लाइन पे रखा ले है। लो तुमसे भाई। कृपया लाइन पर बने लाने रहिए। दो ना, किसको The लाना है? person you are speaking with आप has put recording your करना call जरा। on hold. लाने दो उसको, Please किसको stay लाना on the line. आप रिकॉर्डिंग जिस करना। व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर अभी रहे तो हैं अगर ये बोल रहा था मैं खुद आगे मुंह में खुद होल्ड बात पर कर सकता रखा हूँ, है। आप दूसरे को लाइन पे ले कृपया रहे लाइन पर बने अरे रहिए। लेने दो ना The यार, person टेंशन you क्या are है? speaking with has टेंशन put ना लो your मेरे call होते on हुए, लेने दो hold. उसको। Please stay on देखो the तो सही line. किसको लेके आ रहा है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर या बने तो ये रहिए। फोन करके किसी The से पूछेगा person you are ईमान की speaking तारीफ। with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कह रहा है कॉल को कि होल्ड पर मैं अपनी रखा है। तारीफ कर दूंगा कृपया लाइन पर बने रहिए। तो माफी The मांगोगे person you मुझसे। are अरे speaking बाप रे with बाप, has put your call on hold. इतना बड़ा दावा कर Please रहा है। stay on the line. आप ये जिस व्यक्ति से ये बात कर तो रहे बहुत हैं उन्होंने आपके कॉल को आंकड़ा था, होल्ड पर बातें बड़ी रखा बड़ी। है। वो तो मैं कृपया आलिम हूँ, लाइन मैं पर सैयद बने हूँ, रहिए। The मैं person अकेला ही you are काफी हूँ। speaking with has put your call on hold. Please अभी stay कह रहा on है the कि line. मस्जिद आप के जिस इमाम व्यक्ति को से इमाम बात बोल कर सकते रहे हैं हैं उन्होंने और आपके हजरत अबू कॉल को बकर को इमाम नहीं होल्ड बोल पर रखा है। सकते। कृपया लाइन पर बने रहिए। ऐसे The तो person you are जाहिल पैदा हो speaking गया है, with पता has नहीं। put your ये call लोग on पढ़ते hold. पढ़ाते हैं नहीं, Please stay on और the line. मौलवी मुल्ला की डिग्री ये आप मेरी जिस व्यक्ति ये से मेरी बात रिकॉर्डिंग कर कर रहा रहे था हैं हजरत। उन्होंने आपके कॉल को होल्ड मैं पर जब उससे रखा बात है। कर रहा था तो ये कृपया लाइन पर बने यूट्यूब रहिए। व्हाट्सएप पे मेरी The रिकॉर्डिंग person कर you रहा are था speaking व्हाट्सएप की, with has तो put मुझे your call on रिकॉर्डिंग hold. भेजी इसने। Please stay on the line.
अरे देखो आप मर जिस गया व्यक्ति जिंदा है से यार, बात कर रहे हैं इतना टाइम नहीं है उन्होंने हमारे आपके पास। कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने इन रहिए। लोगों के पास क्या The खाली बैठे person हुए you are कोई काम speaking धंधा with तो है नहीं। has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं ये बस उन्होंने यही है कि आपके इनको कॉल एक को थप्पड़ लगाओ तो ये होल्ड बाप पर के रखा पास है, भागते हैं, अब्बा अब्बा वो कृपया मुझे लाइन मार रहा है, पर बचा बने लो। रहिए। The person you और are अब्बा भी speaking मेरा with नाम सुन के has कहते put हैं your यार उनसे call बात on ना किया hold. करो। Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं मुझे उन्होंने लगता है आपके उसकी कॉल तारीख को में ये बात होल्ड चलेगा। पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are बताओ, एक speaking छोटे with सा has सवाल put पूछो your तो ये call लोग on hold. जतीत की तरफ Please भागते stay हैं और on the कहते हैं कि line. हम मुनाजरा करें। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड क्या पर होगा इन रखा लोगों है, का यार। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप इंतजार जिस करना है व्यक्ति इसका। से जमशेद भाई, बात कर रहे हाँ हैं उन्होंने आपके मुझे कॉल ऐसा को लगता है होल्ड ये पर रखा है, होल्ड पर करके कृपया लाइन पर बस बंद बने कर दिया, रहिए। भाग गया है The शायद। person you are speaking with has काट put करके your दोबारा call. लगाओ इसको। ठीक है, काट के लगा रहा हूँ। आए आए The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। जमशेद भाई, जी उसने स्विच ऑफ कर लिया फोन। अब यहाँ से समझ जाओ आप कितने बड़े नाअहल होते हैं ये लोग। जी जी, स्विच ऑफ कर लिया उसने फोन ही। हाँ तो उसके बस ये की बात नहीं है ना, ये लोगों के बस की बात नहीं है। जी जी बिल्कुल हजरत, ये मेरे पास बहुत आते हैं हजरत, ये कभी कभी परेशान करते हैं ये। आपका आपका देखिए मैं बहुत आपको बहुत बताऊं, शुक्रिया जमशेद भाई। मैं बताऊं आपको जी एक, क्या बताऊं मैं यार, क्या मिसाल दूं, मेरे को हंसी आती है इनकी ऊपर। बस जी इतना समझ लो कि अगर शरीयत जो और दीन जो रुसवा होगा ना, ऐसे ऐसे जाहिलों की वजह से हो रहा है। जी जी बस इतना समझ लो। जिनको ये नहीं जी। मालूम है ईमान हाँ। का माना क्या है, ईमान किसको कहते हैं, दूसरी बात जिनको ये नहीं पता है ईमान हम्म किसको कहते हैं, ईमान है क्या चीज, जिनको ये नहीं पता है कि सहाबा का मकाम मर्तबा क्या है, ताबई क्या है। अब बताइए, हजरत मत लगाइए, मौला लगाइए। अबे ये उसूल तू मुझे सिखाएगा? हाँ हम्म? हाँ, वो अपने हिसाब से बस बोल रहा है कि मैं जैसे बोलूं तुम भी वैसा ही बोलो। वो उसूल सिखा रहा अब है ये तो आपको। कोई बात नहीं है, कल को तू अपने बाप को हरामी कहेगा तो तू बोलेगा मेरे बाप को हरामी बोलो। ये तो कोई बात नहीं है ना। जी जी हजरत तो कहीं बिल्कुल। गुस्से में तू अपने बाप को हरामी कह दे तो मैं भी जी वही वही चीज पकड़ लूं, और भाई हरामी कैसा है तू, जी जी तो ये तो कोई बात नहीं ना। हजरत, बड़े बड़े खबीस से आपके सामने 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं टिकते। इनके जो बड़े बड़े मुल्ला है ना, कारी अहमद हो गया, और वो साजिद हो जी गया, मौलाई जो अपने आप को जी कहता है, इसका कामरान चरसी, सरवर चरसी, अजमेर के जो मुजावर हैं जितने, जी इनको जी बस कुछ नहीं है, बस इतना कह दो जमशेद कादरी साहब से बात करनी है, बस वो एकदम आवाज सुनते ही कहेंगे हम नहीं करेंगे बात, काट देंगे फोन। जी। आपसे एक बार हुई शायद बात है मौलाना, वो जर्जिस से भी हुई बात आपसे शायद। जर्जिस तो खैर वो तो बात ही नहीं करता है, फोन ही काट देता है वो। देखो फिर कुछ भी नहीं है, हम डरते नहीं किसी से बात करने से, ठीक है। जी और डरने जी वाले डरेंगे वो जिसके पास हवाले ना हो, जी डरेंगे वो जिसके पास जो है ईमान की कमजोरी हो। जी देखो हजरत ईमान की जो कमजोरी का, मैं मेरी सुन लीजिए पहले। जी हुजूर। ईमान की कमजोरी का ये होता है कि जिसने पढ़ाई नहीं जी करी है हम्म और सामने वाला अगर उसको कोई हदीस दिखा रहा है, जो उसको कोई कुरान की आयत दिखा रहा है, तो उसके दिल में एक वसवसा सा आ जाता है, यार ये दिखा तो सही रहा है, ठीक है, हम्म, अब इसका कैसे जी जी जवाब दूं, क्या
तो थोड़ी देर के लिए उसका ईमान डगमगा जाता है, यार ये दिखा तो सही रहा है, ठीक। अब वो क्या करता है, वो भागता है हमारे आलिमों की तरफ। जी अब जी जो आलिम खाली होते हैं वो तो उसका जवाब नहीं देते हैं, तो वो फिर क्या करता है, फिर दो ही काम करता है, एक तो या तो उनसे बातचीत करना बंद कर देगा या फिर उनसे मुतासिर हो जाएगा, ठीक है। जी जी लेकिन जी अगर उसके पास ईमान पुख्ता डट वाला होगा ना, एकदम जिसको कहते हैं एकदम जी अड़ियल वाला, भले ही से वो पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसका जी जी ईमान जो पुख्ता है ना, तो वो उसमें भी बहस कर जाएगा। जो तू ये हवाले दे रहा ना, हमारे आलिम के सामने दिल के दिखा, मैं लाइन पे ले रहा हूँ, जी उससे भी अड़ जाएगा, समझे। हजरत। जी हजरत, अल्लाह के करम से आपकी दुआ है हजरत, इन लोगों से मुतासिर तो मरते दम तक नहीं होऊंगा हजरत। नहीं वो तो बात सही है आपकी। अब जी आपके देखो नजरों के सामने मैंने तो कुछ बोला भी नहीं उसको, उसने जो जी कुछ मुझसे पूछा मैंने उसका मैं जवाब दिया, फिर मैंने उससे एक चीज पूछा तो वो देखो कैसे फोन काट के भाग गया, भाग ठीक। गया। अब बताओ, हम्म। बात करते हैं बड़ी बड़ी और जेब में, वो कहते हैं ना, बात कुछ करते हैं नहीं। हवाई जहाज पे बैठने की और जेब में पोटी कौड़ी नहीं, वही जी वाला हिसाब है। तो जी ये लोग ऐसे चौड़े होके आते हैं ना कि जन्नत इनके अब्बाओं ने खरीद ली है, रजिस्ट्रेशन करवा जी लिया है वहां पे, लेकिन इनको जी ये नहीं पता है कि जन्नत की एक हवा तक नहीं लगेगी इनको, जैसे इनका जी अकीदा है। बिल्कुल बिल्कुल हजरत। चलिए ठीक है, ठीक। जमशेद भाई, अजमेर अजमेर तशरीफ कब ले रखा है, आ रहे हो आप अजमेर इंशाल्लाह शरीफ? बहुत जल्द आना होगा फैमिली के साथ। मैं अजमेर शरीफ के पास में रहता हूँ हजरत, ठीक। कभी आइए।